تیرے طریقے رہبر راہ شامیت حضرت علامہ مولانا الحاج سید شمس اللہ صاحب اسٹیج پر مختصر فرمان ائمہ مساجد اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامین وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کلیمی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم مولد مجسم شاہ آدم علیہ آدم نبی مکرم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضیلتوں میں ایک فضیلت بھی ہے۔ امام سنت اعلیٰ مولانا شاہ امام محمد رضا خان کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار ان کے بدن میں ایک فورا ہوا، ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کرنا پڑے گا۔ حجت الاسلام سے کہا گیا کہ آپریشن 2-2.5 گھنٹے کا ہوگا، اس لیے آپ کو بے ہوشی کا انجیکشن دیا جائے گا، کچھ دیر آپ بے ہوش رہیں گے، پھر اس دوران آپ کا انجیکشن کی بے ہوشی کے بعد آپ کا آپریشن ہو جائے گا۔ حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان ارشاد فرماتے ہیں کہ انجیکشن نہ لگائیے، بے ہوش مت کیجیے، ہو سکتا ہے کہ بے ہوشی کے دوران میری کوئی نماز قضا ہو جائے، اس لیے انجیکشن نہیں لگائیے، آپ یوں ہی جو بھی کٹائی چرائی جو بھی کاٹنا ہے آپ کاٹتے رہیے، آپ انجیکشن نہ لگائیے۔ ڈاکٹروں نے کہا حضور آپ کو تکلیف ہوگی، شہزادہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا میرا معاملہ ہے، تکلیف ہوگی نہیں ہوگی تم اپنا کام کرو میں اپنا کام کروں گا۔ اوٹی میں تشریف لے گئے، بستر پہ لیٹے، ڈاکٹروں نے اپنا کام شروع کیا۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپریشن کی شروعات سے لے کر کے آخری تک بارگاہ رسالت میں درود پڑھتے رہے، برکت اتنی ہوئی، درود کا فیض اتنا جاری ہوا کہ پورا آپریشن ہو گیا، شہزادہ اعلیٰ حضرت کو کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ سبحان اللہ، جی لگا کر بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا کریمی یا محسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برسی کے سالانہ محفل میں ہم اور آپ رہنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چند منٹ میں انشاءاللہ موت اور میت کے تعلق سے ہمارے علاقے میں جو باتیں ہیں اس پر کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مرقات میں بات لکھی ہے کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو ان کے انتقال کے بعد خواب دیکھا، خواب دیکھ کر کے ان سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، موت کے بعد تمہارا کیا حال ہے؟ تو اس شخص کا جواب سنیے، وہ کہتے ہیں موت کے بعد جب میرے رب کی بارگاہ میں میری پیشی ہوئی، رب کی بارگاہ میں مجھے پیش کیا گیا، میرے اعمال نامے کو تولا گیا، نیکی بدی کا حساب کیا گیا، تو حال یہ ہوا کہ حساب و کتاب کے بعد میرے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا، میری نیکیاں کم تھی، گناہ زیادہ تھے، فیصلہ میرے جہنم کی طرف جانے کا ہو رہا تھا کہ اچانک کسی نے ایک کاغذ کا پڑیا لے کر کے آیا، اس پڑیے میں کچھ رکھا ہوا تھا، اس پڑیے کو انہوں نے میری نیکی کے پلے میں رکھا، اور جب نیکی کے پلے میں رکھا تو اس پڑیا میں رکھنے کے بعد اب میری نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب میرے گناہ کم ہو گئے،
फैसला हुआ जन्नत में लेकर के जाइए। आप वो बुजुर्ग कहते हैं कि जिसके साथ ये मामला हुआ वो बड़ी हैरत में रहे थे कि आखिर इस कागज के पुड़िया में क्या था, आखिर इस कागज के पुड़िया में कौन सी ऐसी तिरियात थी कि इससे पहले मेरी नेकियां कम गुनाह ज्यादा और इसके बाद अब मेरे गुनाह कम नेकी ज्यादा हो गई। पूछा इन्होंने, रहा नहीं गया, फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों इस पुड़िया में क्या है? फरिश्तों ने कहा खुद देख लो। जब वो पुड़िया खोलते हैं, पुड़िया खोल करके जब देखते हैं तो देखा उस पुड़िया के अंदर मिट्टी रखी है, उस पुड़िया के अंदर मिट्टी है, जमीन के ज़र्रात हैं। जब मिट्टी को देखा वो शख्स कहते हैं, मैंने फरिश्तों से पूछा, फरिश्तों ये तो मिट्टी है, इसको नेकी के पल्ले में कैसे रखा गया? ये तो मिट्टी है, आखिर ये नेकी के काम कैसे आ गई? तो जवाब सुनिए, फरिश्ते कहते हैं ये कोई आम मिट्टी नहीं, ये कोई आम जगह की मिट्टी और जमीन का हिस्सा नहीं। एक शख्स सुनो, ये वो मिट्टी है जब किसी मुसलमान के मरने के बाद जब उसको कब्र में दफनाया जाता था, कब्र में दफनाने के बाद ऊपर से जो तुमने अपनी जिंदगी में मुसलमान की मय्यत पर मिट्टी डाला था, वही मिट्टी को आज तुम्हारे अमाल नामे में नेकी के पल्ले में रखा गया और अल्लाह ताला उसी की वजह से तुम्हारी बख्शिश फरमा दिया। मय्यत की मिट्टी हमारे एक तादाद है लोगों की जो जनाजे में नहीं जाती और एक तादाद है जो जनाजे में तो जाती है लेकिन मिट्टी नहीं देते। जनाजे में गए, कब्रिस्तान भी गए, फिर भी कुछ लोग हाथ बांध के खड़े रहते हैं और कुछ मिट्टी देते भी है तो उन्हें देने का तरीका नहीं आता। आप गौर कीजिए, कितनी अफसोस की बात है कि हमें अपनी मय्यत के दफनाने के बाद उन्हें मिट्टी डालना नहीं आता, मिट्टी डालने की दुआएं हमें नहीं आती। आप यकीन करें, यह निहायत अफसोस की बात है। हमारे घर से, किसी भी घर से मय्यत तो होनी है। अब जब मय्यत होनी ही होनी है तो हर मुसलमान की एक निहायत अहम जिम्मेदारी है कि आप कब्र में मिट्टी डालने की दुआएं याद करें, मिट्टी डालने का तरीका याद रखें। जब आपको अपनी मय्यत को दफनाने का तरीका याद रहेगा, जब आपको मिट्टी डालने की दुआएं याद रहेगी तो इंशाअल्लाह जब आप मय्यत को दफनाएंगे और तरीके के मुताबिक दफनाएंगे, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको भी दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। आप जानते हैं कब्र में जब मिट्टी डालते हैं तो कौन सी दुआ पढ़ी जाती है? दुआ जो पढ़ी जाती है मैं पढ़ता हूं, एक बार में याद नहीं होगी, लेकिन इसको याद रखने की और याद करने की कोशिश कीजिएगा। मैं दुआ को समझाता हूं क्या है। जब आप किसी मय्यत को दफनाने के बाद मिट्टी लेते हैं तो मिट्टी का पहला जर्रा, पहली बार जब आप अपने हाथ से उठा करके मिट्टी डालते हैं तो दुआ पढ़ी जाती है, मिन्हा खलकनाहुम। मिन्हा खलकनाहुम का मतलब क्या है आप समझते हैं? मिन्हा खलकनाहुम का मतलब ये है कि हमने तुमको जमीन से ही पैदा किया, यानी जमीन से ही हमने तुमको पैदा किया। अल्लाह तबारक व तआला मिट्टी देने के तरीके में ये इरशाद फरमाता है कि जब आप मिट्टी दो तो इस बात को याद रखो कि यही मिट्टी है जिसके जरिए से आपको पैदा किया गया है, इसी में पैदा किया। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। जब आप दूसरी चुल्लू आप उठा करके दे तो आप ये दुआ पढ़ें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि क़यामत के दिन इसी मिट्टी से आपको उठाया जाएगा और उसके बाद वो मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। फिर उसके बाद कहा गया कि फिर क़यामत का दिन होगा तो इसी मिट्टी से दोबारा आपको क़यामत के दिन उठाया जाएगा। यानी एक इंसान की हकीकत मिट्टी से शुरू होकर के मिट्टी पर खत्म होती है और क़यामत के दिन उसी मिट्टी से फिर दोबारा उठा करके क़यामत के मैदान में लाया जाएगा। अब जब हाल ये है, जब इस दुआ का मतलब ये है तो आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप इन दुआओं को याद करें और याद करके मिट्टी देते वक्त इन दुआओं को पढ़ करके और इस दुआ का मफ़हूम समझ करके जब आप मय्यत को दफनाएंगे तो आपको अपनी आखिरत भी याद आएगी, अपना ख्याल भी याद आएगा। इसलिए इस दुआ को याद कर लें। हमारे यहाँ मय्यत में और कुछ चीजें अजीब व गरीब होने लग गई है। किसी के यहाँ अगर मय्यत होती है
ध्यान से इस मेरी बात को सुनिए। अगर किसी के यहाँ मैयत होती है तो हमारा दीन, हमारा मजहब क्या कहता है, सुनिए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत जाफर बिन अबू तालिब को एक जंग में भेजा था। जाफर बिन अबू तालिब मुसलमानों की फौज के साथ एक जंग में गए थे। जंग से खबर आई कि जाफर बिन अबू तालिब शहीद हो गए हैं। नबी करीम ने हजरत जाफर के शहीद होने की खबर जब सुना तो हजरत जाफर के घर गए, खुद गए और घर जाकर के आप उनके बेटों से, उनके बच्चों से मोहब्बत कर रहे हैं, उनके सरों पर शफकत का हाथ फेर रहे हैं। जब घर में वालिदा ने देखा, जाफर की बीवी ने देखा आज मामूल के खिलाफ, आदत के खिलाफ हमारे नबी हमारे घर आकर के बच्चों से मोहब्बत क्यों कर रही है। आखिर आज बच्चों के हाथ पर, बच्चों के सरों पर शफकत का हाथ क्यों फेरा जा रहा है। बीवी से रहा नहीं गया, नबी करीम से पूछ बैठती है, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे शौहर की कोई खबर है, मेरे शौहर की खैरियत तो है। नबी करीम का जवाब सुनिए, आका इरशाद फरमाते हैं, ए खातून सब्र करो, तुम्हारा शौहर जाफर जो किसी जंग में गया था, खबर आई कि जंग में शहीद हो गया है। सब्र करना, अपने बच्चों की यतीमी पर सब्र करना, अपने बेवा हो जाने पर सब्र करना, बेसब्री का मुजाहरा नहीं करना। नबी करीम सब्र का कहकर घर आते हैं और घर आकर अपने घर वालों से कहते हैं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं सुनिए। घर आकर अपने घर वालों से कहते हैं, जाफर के घर वालों के लिए खाना बनाओ। आज उनके घर में मैयत हो गई है, उनके घर वालों को आज खाने पीने का होश नहीं होगा। वो कैसे चूल्हा जलाएंगे, कैसे खाना बनाएंगे। आज तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खाना बनाकर जाफर के घर भेजो। ये इस्लाम है, ये सुन्नत है, ये सीरत है, ये तरीका है। लेकिन आज हमारे यहाँ मुसलमान दीगर चीजों की तरह इस चीज को भी भुला बैठा। जबकि इस्लाम ये था कि इस्लाम अगर किसी के यहाँ बस्ती में मैयत होती है, पड़ोसी और बस्ती वालों पर इस्लाम ये जिम्मेदारी देता है कि बस्ती वाले, पड़ोसी के लोग उनके घर वालों का इंतजाम करें, मैयत में आए हुए मेहमानों का इंतजाम करें। उल्टा हमारे यहाँ क्या होने लगा है, जिसके यहाँ मैयत होती है घर वाला खुद गोश्त बनवाता है, घर वाला खुद खाना बनवाता है। जिस घर में दूसरों को खाना पहुंचाने का इस्लाम दिया था, आज लोग उसी घर में जाकर के खाना खाते हैं। क्या पड़ोसी, क्या मेहमान, सब उस घर में जाकर खाना खाते हैं। मैयत वाले घर, मैयत के घर में, मैयत वाले घर में मैयत के दिन खाना खाना आला हजरत ने मकरूह लिखा है। उसके बाद हमारी कौम उसी घर में खाना को घर वाले बनाते हैं और सारे लोग बैठ करके खाते हैं। और आजकल तो मैयत में आने वाले लोग भी इतने बेगैरत हो गए हैं कि अगर किसी की मैयत में गए और टाइम पर खाना नहीं मिला तो लोग बदनामी करते करते जाते हैं। मैयत में आए, खाना नहीं बनाया था, अच्छा खाना नहीं था, इतने भी मतलबी नहीं होने चाहिए। अगर आप मैयत में गए हैं, मेरी कौम के लोगों, मैं आपको पैगाम देता हूँ, आज के बाद इस महफिल से आप किसी की मैयत में जाए, आप कोशिश करें घर में खाना खा करके जाए, या फिर कोशिश करें कि अगर मैयत वाले घर पहुंच गए हैं, मैयत से फारिग होकर ताज़ियत करके वापस आ जाइए। मैयत वाले घर में दावतों की तरह यूं बैठ करके लजीज खाने का जो निजाम चल पड़ा है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। इसलिए मुसलमानों, इस रस्म को बदलो। अब इसके लिए क्या किया जाए? आप कहिएगा मेहमान तो आते हैं, उनके खाने का इंतजाम कैसा होगा, मेहमानों को कैसे खाना दिया जाएगा? तो मैं उसके लिए कल ही चंदागढ़ में था, चोपड़ा की सरजमीन पर दोपहर और शाम को 2 बयान मेरा हुआ। दोनों बयान में जब इस बात की मैंने ताकीद की, दूसरे बयान के बाद 10-20 नौजवान मेरे पास आए, कहने लगे हजरत क्या किया जाए फिर, जब मैयत वाले घर में खाना नहीं बनाना है तो क्या करें? मैंने आज ही रात को, गुज़श्ता रात को 20 बच्चों की कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर जिम्मेदारी दिया कि आज के बाद आप सबकी जिम्मेदारी है, बस्ती में किसी के यहाँ मैयत हो, सादा खाना बनाओ और सारे मेहमानों को किसी दूसरी जगह बैठकर मेहमानों को खिलाओ और घर वालों के घर में खाना भेज करके लोग उनके साथ कुछ खास लोग बैठ करके उनको खाना खिलाए। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है। लोग इसके खिलाफ चलने लग गए हैं। एक बात और आखिरी में मैं नोट करके अपनी बात को रोकता हूँ। हमारे यहाँ जब मैयत होती है, लोग क्या करते हैं,
जैसे ही मैयत उठी, मैयत है तो मैयत के जो कपड़े थे जो पहने थे उन्होंने, जिस बिस्तर पे मैयत की रूह निकली थी वो चादर उठाते हैं, वो कपड़े उठाते हैं। एक तरफ मैयत गई, दूसरी तरफ घर की कुछ औरतें वो कपड़ा लेकर के जाती है और कब्रिस्तान के आसपास ले जा करके वो खवातीन उस कपड़ों को जलाती है। जलाने के पीछे मैंने मालूम किया कि ऐसा क्यों करती है, औरतें ये काम क्यों करती है, तो मुझे बताया गया कि लोग उस कपड़े को मनहूस समझते हैं। मैयत के कपड़े को मनहूस समझने की वजह से लोग मैयत के साथ उनके कपड़े भी निकाल देते हैं और वो भी वही कपड़ा जिस कपड़े में मैयत हुई, जिस चादर पे मैयत को सुलाया गया था, वो ले जाकर के जला देते हैं और इसके पीछे नहूसत समझते हैं। मेरी कौम के वो लोग, अगर मनहूस समझना है तो मैयत की एटीएम को मनहूस समझो, उठाओ और एटीएम का पैसा किसी मदद से ले दे दो। अगर मनहूस समझना है तो औरत मरी तो उनके सोने चांदी के झुमके को मनहूस समझो और उठा करके किसी गरीब को दे दो। एटीएम बचा करके रखना है, सोने चांदी के जेवर निकाल करके कब्जा करना है। और मनहूस किसको समझना है? जिस पे मैयत हुई। धैर्य खुदा से मैयत की कोई चीज मनहूस नहीं होती। हमारे यहाँ बदशगुनी की कोई जगह नहीं, नहुसत की कोई जगह नहीं। हमारे इस्लाम में नहुसत की काट की गई है। इसलिए खुदा के वास्ते मैयत के कपड़े को मनहूस न समझिए। इस्तेमाल के काबिल है तो इस्तेमाल कीजिए, खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी गरीब को दीजिए, अपने घर में रखे रहिए। मनहूस समझकर आपने जलाने की कोशिश किया, आप गुनहगार होंगे। बातें बहुत सारी है, वक्त बहुत कम है। सरकार बाबू हुजूर की ज़बानी भी कुछ नसीहत सुननी है, मैं अपनी बात को रोकता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे तुफैल हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बाबू हुजूर क़िबला मदरसतुल आली के दारुल उलूम फिदाइया खानकाए समरकंदिया दरगाह से ये 2026 का कैलेंडर तशरीफ लाया है। 2026 का कैलेंडर घरों में होनी चाहिए। इस्लामी तारीखें देखने, शादी ब्याह वगैरह के लिए लोग कैलेंडर अपने घरों में रखते हैं। इस कैलेंडर की बहुत खुसूसियात है। इसमें मज़ारात औलिया की तस्वीर, खासकर दुआएं, खासकर चीजें और साथ में उर्सों की तारीख वगैरह भी लिखी है। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बाबू हुजूर के इस मदरसे के इस कैलेंडर को आप सब हदियतन हासिल कीजिएगा। 100 रुपए इसका हदिया है। 100 रुपए देकर के 2026 का, इससे पहले के अलग अलग अनाब शराब कैलेंडर लोग अपने घरों में रखते हैं। मैंने कई घरों में देखा अजीब गरीब कैलेंडर लोग लटका के रखते हैं। अजीब गरीब नहीं, मोहब्बतों भरा ये कैलेंडर अपने घर में लटकाइएगा। 100 रुपए हदिया है। हमारे बंटी भाई के पास इसका ठीक ठाक तादाद है, ये आपके पास खुद चले जाएंगे। आप अपनी अपनी जगह 100 रुपए देकर के आप इस कैलेंडर को जरूर हासिल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। बेटी दूसरे के लिए